और इस वक्त आपको बता दें कि आज महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 64 में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मरहूम मंसूर अहमद की याद में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें टीएमसी के कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए और उन्हें नम आंखों से याद किया गया। इस मीटिंग का आयोजन 64 नंबर ब्लॉक प्रेसिडेंट बिजली रहमान ने किया था। इस दौरान उपस्थित हुए लोगों ने कहा कि बिजली रहमान वार्ड के एक जिम्मेदार शख्स है और उनके नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का काम आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर वार्ड की काउंसलर समी जहां और ब्लॉक प्रेसिडेंट बिजली रहमान समेत जमीर अहमद, पिंकू, शारिक अहमद, फरीद खान, फरजाना चौधरी, कुदरत आलम बाबू व अन्य लोग शामिल थे। इस दौरान सबने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मंसूर भाई আমাদের বহুদিনের, এমনকি আমি যখন কংগ্রেসে ছিলাম সেই সময় मंसूर ভাই কংগ্রেসে ছিলেন, কংগ্রেসের কাউন্সিলর যখন ছিলাম সেই সময়ও উনি ছিলেন। তারপরে ওনারা তৃণমূলে যোগদান করেন, আমি থেকে যাই কংগ্রেসে। কিন্তু আবার আমি যখন তৃণমূলে যোগদান করি আবার मंसूर ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়। এবং मंसूर ভাই এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, সকলের দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, ভালো বক্তা ছিলেন, ভালো লিড করার ক্ষমতা ছিল, একটা নেতা হবার যোগ্যতা ছিল, আর খুব ডিসিপ্লিন মেনে কাজ করতেন। এই ও मंसूर ভাইয়ের মেয়ে ওই 15ই আগস্টে যখন আমি ওদের বাড়ি গেলাম তখনই দেখতে পেলাম যে উনি অসুস্থ। मंसूर ভাইয়ের কথা বলে শেষ করা যাবে না। ডিসিপ্লিন ওয়েতে অর্গানাইজ করার ক্ষমতা ছিল। কারো অসুখ বিসুখ হলে मंसूर ভাই ছুটে যেতেন, সকলের পাশে দাঁড়াতেন। এমনই একটা ব্যক্তিত্ব ছিল मंसूर ভাই। मंसूर ভাই চলে গেছেন, কিন্তু আমাদের সকলের হৃদয়ে मंसूर ভাই থাকবেন বেঁচে। मंसूर আহমদের আজকের এই স্মরণ সভা আমাদের খুব ক্লোজ ছিল। আমার সাথে ওর 40 বছরের, 40 কেন 42 বছরের আমার সাথে ওর পরিচয়। 1980-82 সালে যখন প্রথম কংগ্রেস করতে ঢুকি তখন मंसूर আহমদের নেতৃত্বেই আমি কিন্তু কংগ্রেসটা শুরু করি। তারপরে দীর্ঘদিন আমরা একসাথে দল করেছি। তখন মধ্য কলকাতা সোমেন মিত্র তখন শেষ কথা বলতো, সোমেন মিত্র গ্রুপই আমরা করতাম। मंसूर তার নেতৃত্ব দিত, বিশুদা, রাজীবদা ছিল, চীনাদা ছিল, বরকত গনি খান চৌধুরীও এখানে মাঝে মাঝে আসতেন। তো একটা অন্য চরিত্রের ছেলে ছিল, খুব ভালো বলতে পারত, পড়াশোনাও শিক্ষিত ছিল। আমাদের ঘরোয়া মিটিং বলুন, পাবলিক মিটিং বলুন, টোটাল মিটিংয়েই ও কিন্তু মিটিং পরিচালনা করত। আমি সভাপতি, কিন্তু মিটিংটা পরিচালনা ও করত। খুব ভালো হিন্দি বলতে পারত। আর অফিসিয়াল কাজ, ইলেকশনের যে অফিসিয়াল কাজ, সেই অফিসিয়াল কাজগুলো খুব ভালোভাবে করত। যেমন ডে অফ ইলেকশনে ভোটার লিস্ট ডিস্ট্রিবিউট করা, ফাইল ডিস্ট্রিবিউট করা, ক্যাম্প কোথায় হবে, কোন ক্যাম্পে কে থাকবে, কোন পার্টে কে পুলিং এজেন্ট হবে, তার রিলিভার কে হবে, সমস্ত তার নখদর্পণে ছিল। তো এই দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে একটা মেশিনের মতো হয়ে গেছিল ইলেকশন কাজের জন্য। সেই সময় আমরা মাস্টার রোল করতাম। ইলেকশনের আগের দিন সারা রাত ধরে 39টা পার্টের মাস্টার রোলও কিন্তু করে যেত। আর ওর কাজ একদম নিখুঁত ছিল, কাজে কোনো
গণ্ডগোল আমি পাইনি, যার জন্যে লোক ওকে খুব ভরসা করত, ওর উপর টোটাল দায়িত্ব দিত, আর ও দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ওই দায়িত্ব ও পালন করত। এটা ওর বিরাট একটা গুণ ছিল। আগামী দিনে আমি আশা করব মনসুরের চলার রাস্তায়, যে রাস্তা ও দেখিয়ে গেছে, সেই রাস্তায় আমি জুনিয়র ছেলেরা যারা মনসুরের আন্ডারে কাজ করেছে তাদেরকেও কিন্তু এক একটা মনসুর, নতুন নতুন মনসুর আমি পাবো, এই আশা আমি রাখি। मंसूर भाई के बारे में क्या बताएं, बताइए। मंसूर भाई एक अच्छा टीएमसी के वर्कर्स थे, 64 नंबर वार्ड के, हमारे बहुत सीनियर थे। उनका दुख हमको तो है, हमको क्या पूरा वार्ड ही को है, उनका तरह वर्कर्स मिलना मुश्किल है। मैं यही मतलब अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनको घर वाला को अल्लाह जो है सब्र अता फरमाए और उनका हर गुनाह को माफ़ करे, उनको जन्नत में अल्लाह से आला मकाम अता फरमाए। और मैं क्या बोलूँ, तो बड़प्पन है हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बिजली रहमान साहब का, तो ये उनका बड़प्पन है कि उनका याद में आज प्रोग्राम किए। उनको याद तो रखे, एक वर्कर्स को याद रखना एक लीडर के लिए बहुत बड़ा बात होता है। ये बहुत बड़ा काम किए हैं जनाब बिजली रहमान साहब। ये काम क्या बोले हम, उनका बिजली रहमान साहब का जो है स्टार्टिंग से यही रहता है। और एक मतलब वो किए थे, उनका एक कांग्रेस में थे बबलू मुखर्जी, उनके लिए भी किए थे, और अब इनके लिए तो बहुत ही मकतदान दिए बबलू मुखर्जी के लिए। मतलब पूरा उसको मतलब हॉस्पिटल से लेके आना, शमशान तक पहुंचाना, मतलब ये सब बिजली रहमान का मतलब हमरा जहाँ तक जानकारी में कि उनका ये सब चीज़ बहुत अच्छा है। और अल्लाह उनको तौफीक दे कि और भी आगे बढ़े वो। हम लोग उनके साथ में, बिजली रहमान साहब के साथ में हम लोग हैं। दीदी से यही गुजारिश करेंगे कि आप का पार्टी के एक 64 नंबर वार्ड का एक अच्छा लीडर, एक अच्छा प्रेसिडेंट बिजली रहमान है। वार्ड में देखिए, जब तक बिजली रहमान है तब तक हम लोग को कोई तकलीफ़ नहीं। वो अगर वार्ड में रहेंगे तो हम लोग भी सही रहेंगे। जनता से यही अपील करना है कि जनता कैसे, हमको ऐसा कुछ नहीं जनता को देना है, उसे लेना नहीं। जनता का हर मुसीबत में हम लोग उनके साथ में खड़ा रहना चाहते हैं। हर दुख हो, सुख हो, मुसीबत हो, मौत हो, शादी हो, हर मुसीबत में जैसा हम लोग की दीदी कहती हैं कि जन्म से लेके शमशान तक हम साथ देते हैं, तो हम लोग भी उस दीदी के साथ में रहते हैं, दीदी के लेके काम करते हैं। तो हम लोग भी जनता के साथ में मतलब जन्म से लेके शमशान तक, कब्रिस्तान तक हम लोग रहना चाहते हैं। क्या बोलूँ, मतलब मैं सोच ही नहीं थी कि उनका कंडोलेंस में मुझे आना होगा। और जैसे मैंने कहा कि वो हमेशा वो बोलते थे, और आज मुझे 2 शब्द उनके लिए बोलना पड़ा। ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई खुशी का माहौल तो है नहीं। बस यही बोलूँगी, बस जैसे मैंने आपको कहा कि जो जोश और जज्बा उनमें था, वो आजकल के कोई नौजवान में भी या मुझ में भी नहीं होगा। बस यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। এই স্মরণ সভায় এসে আমাকে কিছু বলতে হবে, এটা কোনোদিনই ভাবতে পারিনি। যাই হোক, আজকে তার স্মরণ সভায় আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি। আছেন এখানকার ব্লক প্রেসিডেন্ট সম্মানীয় বিজলি রহমান মহাশয়, আমাদের সম্মানীয় ইরফান ভাই, মনসুর ভাইয়ের মেয়ে মানে আমার মেয়ে, মনসুর ভাইয়ের ভাই মানে আমার ভাই, শাহনওয়াজ, জাহির ভাই, জুবের ভাই, সুরেশ, শারিক এবং আমার সংগ্রামী সাথীরা, ভাই ও বোনেরা, সবাইকে আমি আমার সালাম ও নমস্কার জানাচ্ছি। মনসুর ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল 95-এ, যখন আমি প্রথম ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলাম। মনসুর ভাই কংগ্রেসে, আমিও কংগ্রেসে, এবং আমার মনে হয় সবাই আপনারা কংগ্রেসেই ছিলেন। এবং সেই সময় আপনারা যেমন কঠিন লড়াই করে সিপিএম এর সঙ্গে লড়াই করে, মনসুর ভাইও ঠিক তেমনি 24 ঘন্টা আমাকে আগলে রাখতেন এবং সিপিএম এর সঙ্গে লড়াই করে 95-এ আমাকে কাউন্সিলর করেন। পরের বছরও তাই, এবং মনসুর ভাই তখন আমার হাজবেন্ড জীবিত ছিলেন।
আসা যাওয়া আমাদের বাড়িতে সেই সময় ছিল, 2000-এর কথা বলছি, আজ থেকে বহুদিন আগে। একটা বাড়ির সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক হয়ে গেছে। আমার হাজবেন্ড যা কিছু পরামর্শ নেওয়া সবকিছু মনসুর ভাই করতেন। মনসুর ভাই हम लोगों के बीच सब समय लड़ाकू कर्मी के रूप में रहने वाले हम सबके बड़े भाई मंसूर भाई के शोक में हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर वालों को उनके दुख का सहने का शक्ति मिले, यही प्रार्थना हम लोग सब भगवान से करेंगे। मंसूर भाई का जब से हम लोग तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं, उसके पहले भी कांग्रेस किए, शुरू से ही मंसूर भाई हम लोगों के बीच पूरा का पूरा 100% अपना वो पार्टी में दिए हैं, चाहे वो कांग्रेस के रूप में हो, चाहे वो तृणमूल में हो। मंसूर भाई ने जहां तक हो सका है लोगों की सेवा इस वक्त उनका अचानक इंतकाल हो गया। शायद 18 अगस्त रात 8:30 बजे उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद जो बिजलीदार हमको फोन किया था, और बिजलीदार हम लोगों ग्रुप में बहुत सीनियर आदमी है, हमको टीएमसी में लाने में अगर कोई आते हैं वो बिजलीदार है। खैर ये तो पॉलिटिक्स के बात यहाँ करना नहीं चाहिए। मंसूर भाई नहायत ही नेक और अच्छे और काबिल तारीफ वाले आदमी थे। वो उनके बहुत ही ऐसा बात जो लगता था कि भाई तुम अभी पार्टी कर रहे हो तो पार्टी के जो काम है, जो मेन पार्टी में काम कर रहा है सोशल वर्क करना, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं ज़्यादातर बस्ती एरिया है, तो बस्ती एरिया में कैसा काम करना होना, कैसा काम करना चाहिए, ये वो जब भी उनसे मुलाकात होता या कहीं भी कोई भी फंक्शन में या कोई मीटिंग में या किसी में ये सब बात उनसे हुआ करता था। मुझे याद है 2015 में हमारे एक इंतखाबी जलसा था जाननगर रोड में, सुल्तान साहब मरहूम के साथ मंसूर भाई भी आए थे। उन्होंने वाकई जितना अच्छा तकरीर करते हैं उसी दिन हमने देखा उसको तकरीर करते हुए। खैर आज जो हम लोग के बीच नहीं है, मंसूर भाई का नाम सुनते ही जरा रुआ खड़ा होता है कि भाई मंसूर भाई इतने अच्छे आदमी थे। जब भी मुलाकात होता था सलाम दुआ के साथ साथ हर तरह की बातें करते थे। वो एक पॉलिटिशियन, एक मजे में पॉलिटिशियन थे। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि मुझे हम वहीं अभी बैठे हुए थे कि बिजली को फ़ोन किया कि भाई शुरू हो गया है, तो मैं बोला हाँ तुम 7-7:15 बजे आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम है, करना पड़ता है, तथा के हम आए हैं। तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। और कोई भी उनके फैमिली का कोई भी काम कहीं कोई सी वजह से अटक गया है, या आप लोग के जानिब से, या हो सकता है कुछ हम लोग की तरफ से भी अगर कुछ करना होगा तो हम बिजली हैं और तमाम हम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे स्मार्ट के प्रेसिडेंट और वेस्ट बंगाल तृणमूल माइनॉरिटी सेल के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट जनाब बिजली रहमान साहब तक कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और साथ ही साथ उनको अपने वर्कर, अपने साथियों, अपने कर्मियों की इतनी चिंता है कि आज उन्होंने हमारे मंसूर भाई जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए कांग्रेस मीटिंग का इंतजाम किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये अच्छे नेता की निशानी है। लोग तो हमारे साथ काम करते हैं, जैसे आप बता रहे थे 30 से 40 साल काम किया है, मगर जब लोग चले जाते हैं तो हम लोग उनको भूल जाते हैं, मगर आप भूल गए। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमारे इसमें है कि कुल्लू नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को एक मौत का मज़ा चखना है। तो जो भी आया है उसे तो जाना ही है, लेकिन हाँ जाने वाले जब जाता है तो हम लोग उसे मिस तो करते हैं, उसकी याद तो आती है। আমি সব থেকে যারা এর উদ্যোক্তা তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এইরকম একটা মনসুর ভাইয়ের জন্য এটা করা খুব জরুরি ছিল। ব্যক্তিগতভাবে মনসুর ভাইয়ের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আজকে ওনার সম্বন্ধে কী আর বলবো, উনি এত খোলামেলা মানুষ ছিলেন, এটা ওটা মানে উনি সবার সমস্যা সবার নিয়ে নিজের কথা ভাবতেন না। সব থেকে ওনার আমার এটাই ভালো লাগতো, উনি যার জন্য হোক আমার কাছে
কতবার এসেছেন, এটা করে দাও, এটা যেটা এই করে দাও। দীর্ঘদিন পার্টি করছে, কিন্তু ক্যাসার ইকবাল আহমেদের থেকেও সিনিয়র ছিল মনসুর। পার্টিটা প্রাণ দিয়ে করত, আমরাও তাই করতাম। মনসুর 2000 সালে সুলতান ভাই যখন তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করে, সুলতান ভাইয়ের সাথে মনসুরও জয়েন করে। তারপরে আবার যেরকম কংগ্রেসে এই শোক সভা মানে আমার খুব খারাপ লাগছে। এর সাথে এত নির্বাচনী প্রচার করা রোডে 500 সিনেমার সামনে আমরা স্টেজে উঠে একসাথে করেছি। উনি উর্দু বক্তব্য খুবই ভালো বলতেন, কিন্তু আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি ওনাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। আজ যখন আমি রাস্তা দিয়ে আসছিলাম আমার একটা কথা খুব মনে পড়ছিল, 18 তারিখে রাত্রিবেলাও সেই কথাটা মনে পড়ছিল। তার আগে বলি, আমরা ঈদের নামাজ হওয়ার পর মনসুর ভাইকে ফোন করেছিলাম, আমি কলকাতায় ছিলাম না। কুশল বিনিময় হয়েছিল দুজনের মধ্যে। 15 ফজল, রাশেদ, এরা সবাই ভীষণ স্ট্রং টিম তৈরি করেছিল কড়া রোডে। ওরা বলেছিল আমরা মনসুর ভাইকে সামনে রেখে এই লড়াইটা করব, তারপর শুরু 2022 পর্যন্ত। মনসুর ভাই শুধু আমাদের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই করে যে কথা সত্যি, তার সাথে সাথে কত ভালো ভালো আমরা পার্টি অফিসে बसे गल्प, ईमानदारी, दूरंदेशी और नीडर, ये सब को मिला के मंसूर अहमद था। कभी भी किसी के सामने ना झुका, ना डरा, ना कभी भी कोई भी सही को सही और गलत को गलत बोलने में कभी पीछे नहीं हटा। आप लोग यहाँ सब कोई बहुत कुछ मैंने सुना, बहुत कुछ शुक्रिया अंकल, आपने बुलाया और ये ऑनर दिया उनके लिए। पर क्योंकि अब वो नहीं हैं, तो अभी बस यही एक ही चीज़ पहुंच सकता है, वो है उनके लिए दुआ, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ, जो मैं आप सब से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी कि अब सिर्फ उनके लिए सिर्फ दुआ ही पहुंचेगा। बस यही। थैंक यू सो मच।